الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ناظرین کرام، آج کے اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ قرآن حکیم کا ترجمہ جو ہے کس طرح کرنا ہے، صدق البیان، اس سے آپ استفادہ کس طرح کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں، جو عام طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ بڑی مشکل ہے، قرآن حکیم بہت مشکل ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اپنے پاک کلام میں یہ فرمایا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو میں نے کوئی ادنا سی کوشش کی ہے کہ قرآن حکیم کو آسان سے آسان انداز میں اس کا ترجمہ آپ حضرات کو سمجھایا جائے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ عربی زبان یہ وہ زبان ہے جو قرآن حکیم کی زبان ہے۔ تو اس میں 65% الفاظ ایسے ہیں جو ہم اپنی زبان اردو میں ایز اٹ از یا تھوڑی سی تبدیلی سے استعمال کرتے ہیں۔ 20% ایسے الفاظ ہیں جو بار بار رپیٹ ہوتے ہیں۔ تو ایک کام جو انسان کو نہیں آتا، اگر وہ 2-4 مرتبہ کر لے تو وہ اس کو ازبر یاد ہو جاتا ہے۔ 15% الفاظ ایسے ہیں جو قرآن حکیم کے اندر بالکل نئے ہیں، جن پہ ہم نے محنت کرنی ہے۔ 65% الفاظ جو ہیں یہ ہر بندے کو پڑھا لکھا ہے تو اس کو بھی آتے ہیں، اگر پڑھا لکھا نہیں تو اس کو بھی آتے ہیں۔ 20% الفاظ جو ہیں یہ بار بار جب آپ پڑھیں گے تو یہ ازبر یاد ہو جائیں گے۔ 15% الفاظ ہیں جن پہ آپ نے محنت کرنی ہے، ان کو یاد کرنا ہے۔ یہ ہر رکوع میں صدق البیان میں ہر رکوع کے بعد ایکسرسائز میں غریب الفاظ کی صورت میں دیے ہوئے ہیں جو کہ خالصتاً عربی الفاظ ہیں۔ تو اس میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ کچھ علامات ہیں وہ ہم پڑھیں گے، علامتوں کی مدد سے کچھ شروع میں آئیں گی کچھ آخر میں آئیں گی، وہ علامتیں کاٹ کے ہم الگ کر لیں گے، باقی لفظ جو ہے اس کو ہم اپلائی کریں گے، اپنی زبان میں استعمال کرتے یا نہیں کرتے۔ تو اس سلسلے میں کچھ گروپس ہیں جن کو آپ حضرات نے یاد کرنا ہے، جس سے قرآن حکیم جو ہے اس کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ گروپس ہم نے تیار کیے ہیں، تو سب سے پہلے نمبر پہ گروپ 1۔ یہ گروپ جو ہے، اس گروپ میں ایک ہی علامت ہے اور وہ ہمیشہ آخر میں آتی ہے۔ اور وہ علامت ہے گولتا۔ قرآن حکیم جب آپ پڑھیں گے تو اس کو کبھی اس طرح، کبھی اس طرح اور کبھی ایسے لکھا جاتا ہے۔ یہ علامت جو ہے یہ آتی ہے واحد مؤنث کے لیے۔ قرآن حکیم پڑھتے وقت جہاں پہ بھی آپ دیکھیں کسی بھی لفظ کے آخر پہ گولتا آئی ہے تو یہ واحد مؤنث کی علامت ہوگی۔ ترجمہ ہم واحد مؤنث کا کریں گے۔ مثال کے طور پہ مبراتن، بطاقتن، مکاتو۔ اب یہاں پہ ان تینوں مثالوں میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ گولتا ہے، یہاں پہ گولتا ہے، یہاں پہ گولتا ہے۔ یہ تینوں جو ہے یہ اس بات پہ دلالت کر رہی ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ واحد ہے اور مؤنث ہے۔ تو یہ پہلا گروپ ناظرین کرام آپ ذہن نشین کر لیں کہ گول تا جس لفظ کے آخر پہ آ جائے یہ واحد مؤنث کو ظاہر کرے گی۔
नाज़रीन किराम, दूसरा ग्रुप जो है, इस ग्रुप में आने वाली अलामतें ये भी हमेशा लफ्ज़ के आखिर पे आएंगी और ये अलामतें जो हैं ये 2 के अदद को ज़ाहिर करेगी। और वो अलामतें दर्ज झैल हैं, अलिफ नून, नून के नीचे ज़ेर, या नून, नून के नीचे ज़ेर। ये 2 अलामतें जो हैं ये 2 के अदद के लिए आएंगी। यानी कुरान हकीम अगर आप पढ़ रहे हैं, तिलावत करते वक्त कहीं भी अलिफ नून, नून के नीचे ज़ेर ये आखिर पे आ जाता है, या फिर या नून, नून के नीचे ज़ेर आखिर पे आता है, तो इन दोनों का तर्जमा, दोनों अलामतों का तर्जमा हम 2 का करेंगे। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मुस्लिमानी, 2 मुसलमान, मुस्लिमैनी, इसका भी माना है 2 मुसलमान। किताबानी, 2 किताबें। किताबैनी, 2 किताबें। मुअमिनानी, 2 मोमिन। मुअमिनैनी, इसका भी है 2 मोमिन। तो अलिफ नून, नून के नीचे ज़ेर, या नून, नून के नीचे ज़ेर, ये जहाँ पे भी आएगा इसका तर्जमा 2 का किया जाएगा। बाकी जो लफ्ज़ है, मिसाल के तौर पे मुस्लिमानी, अलिफ नून को हमने अलग कर लिया, बाकी लफ्ज़ जो है मुस्लिमुन, ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं मुसलमान। किताबैनी, या नून अलग कर लें तो बाकी लफ्ज़ किताब बचता है, ये हम उर्दू में भी, पंजाबी में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जी ग्रुप नंबर 3, इस ग्रुप में आने वाली अलामतें जो हैं ये भी लफ्ज़ के आखिर पे ही आएंगी और जमा मुज़क्कर को ये ज़ाहिर करेंगी। वाव नून, या नून, नून पे ज़बर और वाव अलिफ, ये तीनों अलामतें जो हैं ये जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती हैं। वाव नून, या नून जो है ये पिछले ग्रुप में भी हमने पढ़ा था, यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन वहाँ पे नून के नीचे ज़ेर थी, यहाँ पे नून के ऊपर ज़बर है। ये तीनों अलामतें जो हैं ये जमा मुज़क्कर के लिए आती हैं। मिसाल के तौर पे मुस्लिमूना, और ये बात याद रखें, दुनिया में अरबी ज़बान वो वाहिद ज़बान है जिसमें आप मोर देन 2 जब होंगे तो तब जमा में जाएंगे। बाकी ज़बानों में ये है कि आप सिंगल के बाद, यानी एक के बाद आप दो मिनिमम 2, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप जमा में चले जाते हैं। लेकिन अरबिक में मोर देन 2 जब होगा तो तब जो है जमा में आप जाएंगे, यानी 3 से लेके कम से कम लिमिट जो है वो 3 होनी चाहिए, ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। तो मुस्लिमूना, अब वाव नून जो है ये जमा मुज़क्कर की अलामत है, इसको अलग कर लेंगे। बाकी लफ्ज़ हमारे पास मुस्लिमुन, मुस्लिम कहते हैं मुसलमान को, तो मुस्लिमूना बहुत ज़्यादा मुसलमान, यानी 3 से लेके मैक्सिमम जितने मर्जी आप कर लें। मुअमिनूना, बहुत ज़्यादा मोमिन। साबिरूना, बहुत ज़्यादा सब्र करने वाले। इसी तरह मुस्लिमीना, या नून जो है ये जमा मुज़क्कर की अलामत है, ज़्यादा मुसलमान। मुअमिनीना, ज़्यादा मोमिन। और तीसरी जो है वाव अलिफ है। कालू, कुरान हकीम में मौजूद है, इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। तो कालू जो है ये जहाँ पे आ जाए ये भी जमा मुज़क्कर की अलामत है और ये फ़ेल के आखिर में आती है। तो नाज़रीन किराम, इस ग्रुप में 3 अलामतें हैं, हमेशा लफ्ज़ के आखिर पे आएंगी। वाव नून, नून पे ज़बर, या नून, नून पे ज़बर, ये दोनों अलामतें जो है इसम के आखिर पे आती हैं। और वाव अलिफ जो है ये भी आखिर पे आती है, ये फ़ेल के आखिर पे आती है। कालू, ज़ाहबू, तो ये जमा मुज़क्कर को ज़ाहिर करती हैं, यानी इनका तर्जमा जो है हम जमा मुज़क्कर का करेंगे। ग्रुप नंबर 4, इस ग्रुप में एक ही अलामत है और ये भी लफ्ज़ के आखिर पे आती है और वो अलामत है अलिफ और ता। अलिफ और ता कुरान हकीम की तिलावत करते वक्त जहाँ पे भी आप देखें तो ये अलामत है वाहिद जमा मुअन्नस की।
یعنی جہاں پہ بھی الف تا آخر پہ آتا ہے تو آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ لفظ جو ہے جمع مؤنث ہوگا. مثال کے طور پہ مسلماتن، مسلمان عورتیں، تو یہ الف تا یہاں پہ آیا ہوا ہے. مؤمناتن، مومن عورتیں. صابراتن، صبر کرنے والی عورتیں. تو یہ الف تا جو ہے یہ جہاں پہ بھی آئے گا یہ جمع مؤنث کو ظاہر کرے گا. اس کے بعد گروپ نمبر 5 ہے. اس گروپ میں آنے والی علامتیں لفظ کے شروع میں آئیں گی اور وہ لفظ جو ہے وہ فعل ہوگا. فعل کے شروع میں آئیں گی اس گروپ میں آنے والی علامتیں. اور زمانہ اس میں حال اور مستقبل، دو زمانے اس میں پائے جائیں گے، حال اور مستقبل. لیکن یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ ایک ہی وقت میں دونوں زمانوں میں آپ ترجمہ نہیں کر سکتے. ایک وقت میں آپ کسی ایک زمانے میں ترجمہ کریں گے. اگر حال میں ترجمہ کر لیا تو مستقبل میں نہیں کریں گے، اور اگر مستقبل میں کر لیا تو حال میں نہیں کریں گے. یہ ورب کے شروع میں علامتیں آتی ہیں اور ان کی تعداد 4 ہے. پہلے نمبر پہ ہے الف. اگر فعل کے شروع میں الف آ جائے اس کا ترجمہ ہم کریں گے میں. فرسٹ پرسن کے لیے آتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں عالم، یہ جو الف ہے اس کا ترجمہ ہوگا میں. زمانہ اس میں حال اور مستقبل ہے. اب یہ جو لفظ بچا ہے ہمارے پاس اس کو ہم اپلائی کریں گے اپنی زبان میں. استعمال کرتے یا نہیں کرتے؟ تو علم جو ہے یہ اردو میں بھی پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے. علم کا معنی ہے جاننا. تو عالم میں جانتا ہوں فیمیل ہے تو وہ کہے گی میں جانتی ہوں. اگر آپ مستقبل میں ترجمہ کریں گے تو میں جانوں گا یا پھر میں جانوں گی. اسی طرح اذهب، الف کا ترجمہ میں، ذهب کا مطلب ہے جانا، میں جاتا ہوں یا میں جاؤں گا. اگر فیمیل ہے تو وہ کہے گی میں جاتی ہوں یا میں جاؤں گی. دوسرے نمبر پہ جو علامت ہے وہ ہے تا. اگر فعل کے شروع میں تا آ جائے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو. تعلم، تا کا ترجمہ ہو گیا تو. علم کا جاننا، تو جانتا ہے یا تو جانے گا. نمبر 3 یا، اس کا ترجمہ ہے وہ. یعلم، وہ جانتا ہے یا جانے گا. یذهب، وہ جاتا ہے یا جائے گا. نمبر 4 علامت ہے ہمارے پاس نون. اس کا معنی ہے ہم. نعلم، ہم جانتے ہیں یا جانیں گے. نذهب، ہم جاتے ہیں یا جائیں گے. ناظرین کرام، گروپ نمبر 6. اس گروپ میں آنے والی علامتیں ہمیشہ فعل کے آخر پہ آتی ہیں اور ترجمہ زمانہ ماضی میں کیا جاتا ہے. اور ان علامتوں کی تعداد بھی 4 ہے. پہلے نمبر پہ ہے تا زبر تا. اگر فعل کے آخر پہ قرآن مجید اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت کرتے وقت اگر فعل کے آخر میں تا زبر تا آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے تو. یہ آئے گا مذکر کے لیے. وہی مثال پچھلے گروپ والی عالم تا. اب تا کا ترجمہ ہو گیا تو. عالمہ کا مطلب ہے جاننا. علم تا، تو نے جانا.
ज़हाबता तू गया। दूसरी अलामत ताज़ेरती, इसका भी तर्जुमा हम करेंगे तू, लेकिन ये आएगा मुअन्नस के लिए। आलिमती तूने जाना, ज़हाबती तू गई। तीसरी अलामत है ता पेश तू, इसका तर्जुमा होता है मैं। ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आएगी। आलिम तू मैंने जाना, ज़हाब तू मैं गया या मैं गई। उसके बाद नंबर 4 ता और इसके ऊपर जज़्म। ता के ऊपर जो है जज़्म आए कुरान हकीम की तिलावत करते वक्त, तो इसका माना जो है कभी तो हम करेंगे वो, कभी उसने। ये वाहिद मुअन्नस के लिए आएगा। मिसाल के तौर पे आलिमत उसने जाना, ज़हाबत वो गई, ज़हाबत वो गई। तो नाज़रीन किराम, इस ग्रुप में ये 4 अलामतें हैं, चारों ही फेल के आखिर पे आती हैं। ज़माना माज़ी कहा जाता है। ता ज़बरता, ता ज़ेरती, ता पेशतू और ताए साकिना। ता ज़बरता और ता ज़ेरती जो है ये दोनों का तर्जुमा तू है। इंग्लिश में इसके लिए सेकंड पर्सन यू का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ज़बर होगी तो मुज़क्कर के लिए, और अगर ज़ेर होगी तो मुअन्नस के लिए आएगा। ता पेशतू जो है ये फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। इंग्लिश में इसके लिए आई का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसका माना मैं। और उसके बाद चौथी अलामत है ताए साकिना, जिसका माना वो या उसने। ग्रुप नंबर 7 नाज़रीन किराम, ये ग्रुप जो है हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा और हुना। हुआ ग्रुप जो है इसका तर्जुमा हम करेंगे वो। ये लफ्ज़ कुरान मजीद में जहाँ पे भी आएंगे इनका तर्जुमा हम करेंगे वो। और उसके बाद ग्रुप नंबर 8 का, कुमा और कुम, की, कुमा और कुन्ना। ये जो ग्रुप है इसका तर्जुमा करेंगे तुम। ये अल्फाज का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, ये जहाँ पे भी आएंगे इनका तर्जुमा हम करेंगे तुम। ग्रुप नंबर 7 हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। ये 6 अल्फाज कुरान हकीम में, हदीस रसूल में या कहीं भी अरबिक पढ़ते वक्त आते हैं तो इनका तर्जुमा हम करेंगे वो। और ये जो ग्रुप नंबर 8 है का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, इनका तर्जुमा हम करेंगे तुम। इंग्लिश में इसके लिए यू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ये 2 ग्रुप हैं नाज़रीन किराम। ग्रुप नंबर 8, ये हमारे पास एक डाई है फ़ाइलन। इस वज़न पे जो भी लफ्ज़ आएगा इस डाई का हम तर्जुमा करेंगे करने वाला। फ़ाइलुन करने वाला। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है हमारे पास हमद, इससे लफ्ज़ बोला जाता है हामिदुन। हमद का माना है तारीफ, हामिदुन तारीफ करने वाला। इसी तरह शाकिरुन शुक्र करने वाला, साबिरुन सब्र करने वाला। तो ये फ़ाइलुन जो है ये हमारे पास डाई है। इस डाई पे जो भी लफ्ज़ आएगा उसका तर्जुमा हम करेंगे करने वाला। और इसी तरह एक और डाई है मफ़ऊलन। इस डाई पे जो भी लफ्ज़ आएगा उसका हम तर्जुमा करेंगे किया हुआ, यानी
ऑब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे। मिसाल के तौर पे यही हमद से है महमूदुन, तारीफ किया हुआ, मातूलन, खाया हुआ, मशकूरुन, शुक्रिया अदा किया हुआ। तो नाज़रीन किराम, ये दो डाइयाँ जो है, पहले वाली फाइलुन है, फाइल का माना है करने वाला, यानी इस वजन का, इस डाई का हम तर्जुमा करेंगे करने वाला। बाकी जो लफ्ज़ होगा उसका जो माना बनता हम वही करेंगे। और मफऊल ऑब्जेक्ट का तर्जुमा किया जाएगा किया हुआ इस डाई का, बाकी जो लफ्ज़ है उसका जो तर्जुमा बनता है हम वही करेंगे। नाज़रीन किराम, ग्रुप नंबर 9, ये भी किसी भी लफ्ज़ के शुरू में अगर मीम आ जाए, मीम पे पेश हो, सेकंड लास्ट जो है उसके नीचे ज़ेर हो। ये मैंने दो लाइनें इसलिए लगाई हैं ताकि पता चल जाए पढ़ने वालों को, देखने वालों को कि ये सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट के नीचे अगर ज़ेर आती है तो इस मीम का हम तर्जुमा करेंगे करने वाला। मीम जो है इसका तर्जुमा हम करेंगे करने वाला। मिसाल के तौर पे मुशरिकुन, एक लफ्ज़ है शिरक। कुरान हकीम का जो बुनियादी जो मौजू है वो तौहीद है। तौहीद की जो मुतज़ाद है, अपोजिट है, वो शिरक है। तो किसी को शरीक करना, तो मुशरिक, शरीक करने वाला, शिरक करने वाला। तो ये मीम का तर्जुमा हम करेंगे जब मीम लफ्ज़ के शुरू में आए, सेकंड लास्ट जो है उसके नीचे ज़ेर हो, तो इसका तर्जुमा होगा करने वाला। अगर कुरान हकीम पढ़ते वक्त आप देखते हैं कहीं भी मीम आया हुआ है, मीम पे पेश है, सेकंड लास्ट पे ज़ेर की बजाय ज़बर है, तो इसका हम तर्जुमा करेंगे किया हुआ। मिसाल के तौर पे मुहम्मदुन, पीछे हमने भी पढ़ा था पिछले ग्रुप में, हामिदुन, तारीफ करने वाला। अब यहाँ पे मुहम्मदुन सेकंड लास्ट जो है उसके ऊपर ज़बर है, यहाँ पे मुहम्मदुन, तारीफ किया हुआ। इसी तरह एक लफ्ज़ हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं मुहतरमुन, आप मेरे लिए मुहतरम हैं। मुहतरमुन, एहतराम किया हुआ, यानी मैं आपकी इज्जत करता हूँ। तो ये लफ्ज़ जो है ये बोला जाता है। तो ये आपने ज़ेर और ज़बर का ख्याल रखना है कि कुरान हकीम पढ़ते वक्त कहीं भी मीम पे पेश आ जाए शुरू में, सेकंड लास्ट के नीचे अगर ज़ेर है तो तर्जुमा होगा करने वाला, और अगर सेकंड लास्ट जो है उस पर ज़बर आती है तो फिर तर्जुमा होगा किया हुआ। नाज़रीन किराम, ये एक लफ्ज़ कुरान हकीम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, लाम ज़ेरली। और लाम ज़ेरली जो है आम तौर पे आपने यही पढ़ा होगा कि लाम ज़ेरली जहाँ पे भी आए तर्जुमा लिए किया जाता है। इसकी थोड़ी सी तफसील है। अगर कुरान हकीम की तिलावत करते वक्त आप देखते हैं कि शुरू में लाम ज़ेरली किसी भी लफ्ज़ के शुरू में आया हुआ है और आखिरी हरफ जो है उसके ऊपर अगर ज़बर है तो तर्जुमा करेंगे ता के। लाम ज़ेरली आखिरी हरफ जो है उसके ऊपर अगर ज़बर आई हुई है तो फिर तर्जुमा होगा ता के। लितत्मइन्ना, कुरान हकीम में मौजूद है वाली तत्मइन्ना बिही कुलूबुकुम। लितत्मइन्ना, ता के मुतमइनो, क्योंकि आखिर पे ज़बर आ गई है। शुरू में अगर लाम के नीचे ज़ेर है, आखिर पे ज़बर है, तर्जुमा ता के किया जाएगा। और इसी तरह अगर शुरू में लाम ज़ेरली आए, आखिरी हरफ जो है उसके ऊपर जज़्म हो, तो फिर तर्जुमा हम इसका करेंगे चाहिए के। लियसअल, चाहिए कि वो सवाल करे। इसके अलावा तमाम तर सूरतों में तर्जुमा लिए किया जाएगा। यानी कुरान हकीम पढ़ते वक्त आप देखते हैं कहीं भी लाम ज़ेरली आया हुआ है, आखिर पे अगर ज़बर नहीं है, जज़म नहीं है, तो तर्जुमा हम लिए करेंगे। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ, ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा कुरान हकीम में इस्तेमाल हुआ है। शुरू में लाम ज़ेरली हो, आखिर पे ज़बर हो, तो तर्जुमा होगा ताके। लाम ज़ेरली हो, आखिर पे जज़म हो, तो तर्जुमा होगा चाहिए के। इसके अलावा तमाम तर सूरतों में तर्जुमा जो है वो लिए किया जाएगा। ग्रुप नंबर 11,
इस ग्रुप में दो लफ्ज़ हैं, एक है इन्ना और दूसरा है अन्ना। अगर एक और भी लफ्ज़ है कद, इन तीनों का माना होता है बेशक। इन्ना, अन्ना और कद, इन तीनों का माना है बेशक। फ़र्क ये है, इन्ना जो है ये जुमले के शुरू में आता है, अन्ना जो है ये दरमियान में आता है। कुरान हकीम में है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। और इसी तरह अन्ना की मिसाल आप हर रोज़ एक दिन में 5 मरतबा हर मस्जिद में अज़ान सुनते हैं, जहाँ पे भी आप तशरीफ़ फरमा होते हैं। मुअज़्ज़िन जो है वो अज़ान कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो यहाँ पे वो अन्ना पढ़ता है, उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे अन्ना जो है ये दरमियान में आया हुआ है। शुरू में आएगा तो इन्ना आएगा, दरमियान में आएगा तो अन्ना आएगा। इन्ना, अन्ना और कद, ये तीनों अल्फाज जो हैं इनका माना बेशक किया जाएगा। किराम एक और ग्रुप है हमारे पास, इज़, इज़ा और लम्मा। इन तीनों का तर्जमा हम करेंगे जब। तीनों का तर्जमा जो है जब किया जाएगा। इज़, इज़ा, लम्मा, इन तीनों का माना होगा जब। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कुरान हकीम को सही मानों में समझने की और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।